Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students. Students, can you hear me at this time? Hello. My voice is clear, students. Hello. Yes, Adina. Can you hear my voice? Okay, thank you very much, Aksa Nazir, for informing me that you can hear my voice clearly. So nice of you. And very happy good morning to all of you. Weather is very pleasant in Lahore, in Pakistan. बोलने लगी थी in Lahore. Really very pleasant weather. It's raining here. And how are you all? Hopefully you all will be fine. Nisha Naseem is a new one student here. Okay, how are you students? Are you all fine? Okay, let's start. We are I'm talking about the report writing, and I tell you the main points how to write report and what is report writing basically. Am I right? Yes, class. Sleeping or waking? Be active today. Yes, student, report writing. Yes, students, just I want to tell you about the report writing, that what is report writing basically. We continue it. Awaking, ma'am. Okay, Lubaina, good. If you are awaking, then very good. Okay, let's start report writing. What is report writing? Basically, report writing is the good report writing. What is report writing? Just I want to take a look of my previous lectures. What is report writing to refresh in your mind all the points about the report writing. A report or account is an informational work such as writing, speech, television, or film made with a specific intention of related information or recounting certain events in a widely presentable form. ओके किसी भी चीज के बारे में रिपोर्ट हो सकती है, न्यूज़पेपर की भी हो सकती है. आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स अबाउट इट. Okay, next thing is what is report writing? A means to convey some information to others, an organized, factual, objective presentation of information. Objective means it should not be influenced by or our personal feelings. Report is a comprehensive document and covers all aspects of the subject matter of study. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं. सिमिलैरिटीज क्या है इसमें? फॉर्मल स्टाइल होता है, रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे राइटिंग. बेसिकली इस चीज को समझा जाता है कि ये एक ही चीज है, बट देयर इज मेजर एंड ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट राइटिंग एंड बिटवीन एसेज. Okay, we can't write report as an essay. Okay. There is similarities between essay and report writing. फॉर्मल स्टाइल है, केयरफुल प्रूफ रीडिंग है, दोनों की नीट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी और कंक्लूजन होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए. ठीक है जी, ये इसमें बेसिक दोनों चीजें हैं. नेक्स्ट वन इज द की डिफरेंसेस. अगर हम इसमें देखें रिपोर्ट में कि क्या थे, एक रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता. इसमें नीट होनी चाहिए, स्कैन होनी चाहिए, क्विकली जो यूजेस नंबर हेडिंग्स होनी चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए, यूज शॉर्ट कंसाइज पैराग्राफ्स होने चाहिए, डॉटेड पॉइंट होनी चाहिए, यूज ग्राफिक वेयर आर पॉसिबल. जो है ऐसे में हम लोग जो है कभी भी जो है वो नहीं शामिल कर सकते, लेकिन इसमें जो है टेबल ग्राफ्स और इलस्ट्रेशंस जो है वो शामिल की जा सकती हैं. किसकी बात कर रही हूँ मैं? पैराग्राफ राइटिंग की बात नहीं कर रही, बल्कि रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रही हूँ. क्लियर टू एवरीवन?
ठीक है जी। डज नॉट ऑलवेज नीड रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी एंड इज ऑफन फॉलोड बाय रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन होती है इसकी। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम ले, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट रूटीन रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, देयर आर मेनी मोर काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर। फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ठीक है जी। आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड नॉन स्टैट्यूटरी report, and I have told you many times all the examples. I have given you many examples about all classifications of reports: routine report, special report, informative report, interpretative report. I have told you also this. Clear to everyone? Okay ji. Formal report. A formal report is one which is prepared in a prescribed form and is presented according to an established procedure to a prescribed अथॉरिटी। ठीक है जी। फॉर्मल रिपोर्ट थी, इनफॉर्मल रिपोर्ट थी, इसका भी मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया था। ठीक हो गया जी। आगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आ गई थी और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आ गई थी। ठीक है जी। इसका भी डिफरेंस जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या होता है या डिफरेंस क्या होता है, और इसकी जो एग्जांपल्स है आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की दे दी थी, ऑडिट रिपोर्ट है, और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की दे दी थी कि क्या है हम लोगों के पास पॉलिसी फॉर्मुलेशंस जो होती हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आ जाती हैं। क्लियर टू एवरीवन? आगे क्या है? Periodic or routine reports are prepared and presented at regular prescribed intervals. जो पीरियड वाइज होती हैं रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं, कोई आवरली रिपोर्ट हम लोगों ने देनी होती है, कोई वीकली रिपोर्ट देनी होती है, कोई हमने आफ्टर जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था आफ्टर 15 डेज देनी होती है। इस तरह से पीरियडिक रिपोर्ट्स हमारे पास रूटीन रिपोर्ट्स बन जाते हैं। ठीक है जी। आगे स्पेशल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये भी मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बता दिया था। इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स हैं, इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जो है वो आ जाती है हमारे पास। दिस रिपोर्ट्स प्रेजेंट फैक्ट्स अबाउट सर्टेन गिवन एक्टिविटी इन डिटेल विदाउट एनी note or suggestions. A vice chancellor asking about the number of candidates appearing at the particular examination. Information report. ठीक है। इसकी भी मैंने बड़ी अच्छी तरह आपको एग्जांपल देके बताया था। इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट की भी बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स देके बताया था कि जिसकी तशरीहात जो है वो डिटेल में सारा कुछ जो है वो बताया जाता है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ गई थी हमारे पास, प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ गई थी, वेरी शॉर्ट होती है। ठीक है। बहुत ज्यादा जो है हमने इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं करना होता। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट रिपोर्ट है, लेकिन टू द पॉइंट रिपोर्ट जब भी लिखेंगे हमेशा टू द पॉइंट लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स हम लोग बिल्कुल भी नहीं देते हैं। क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स है, सर्च रिपोर्ट भी है, रिसर्च रिपोर्ट भी इसमें आ गई थी आप लोगों की। ठीक है। राइटिंग का रिपोर्ट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी आ जाती है। R&D सब्जेक्ट का मैंने बताया था। R&D सब्जेक्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जी, R&D सब्जेक्ट बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बता भी दिया था कि R&D सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। R&D सब्जेक्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स, R&D सब्जेक्ट्स याद रखें बच्चों। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आप लोगों को सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। खुशनूद कह रहा है यस मैम, कोई जवाब दिया है नहीं है, और यस मैम, यस मैम। ठीक है। अच्छा जी। नहीं बच्चे दे देते हैं, अभी शायद एक्टिव नहीं हुए भाई, यहाँ पे वो भी नहीं किया हुआ, ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ अभी तक। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में केस स्टडी एनालिसिस रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट आ जाती है इसमें। सबमिट रिपोर्ट बेस्ड ऑन अ केस गिवन टू यू आ जाती है। वाइडली यूज्ड इन यूनिवर्सिटी लेवल कॉम्पिटिशंस में आ जाती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है जी। रह क्या गया था? सारा कुछ तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। टू राइट अ गुड रिपोर्ट टू यू शुड नो, कहते हैं कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए एक अच्छी रिपोर्ट जब आप लोग लिखने के लिए बैठे हैं। पर्पज ऑफ रिपोर्ट है क्या? व्हाई आर वी राइटिंग द रिपोर्ट? हम राइटिंग रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में अब आपके पास ये सारे आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर हम रिपोर्ट राइटिंग का रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हम लिख क्या क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है लिखने की। ठीक है। और इसमें लाइक देखें, इफ आई एम टेलिंग यू to write a report, write an incident report. ठीक है। Incident happened in the classroom that all students were taking class. ठीक है। Lecture of not English. All students
of your class, first year class, yes first year class, first year BSN class। अच्छा मैं आपको कहती हूँ राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट, क्वेश्चन बनाती हूँ ना पहले, फिर आप लोगों को थोड़ी सी समझ आएगी, ठीक है। राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट about the um, about the incident which happened in the BSN first year class when they were taking the lecture about the short circuit। शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, बर्निंग होगी थोड़ी बहुत, फायर जो है वो हो गई, ठीक है, फायर इवेंट हो गया। ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अब आप लोगों को पता चल गया ना लिखना क्या है। यहाँ आप लोग सारे यू आर टेकिंग द क्लास, आप सारे क्लास ले रहे थे, अचानक जो है वो बैक साइड पे जो एसी है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एकदम यू सॉ द फायर एंड द वेव्स ऑफ द फायर राइजिंग, ठीक है, एट दैट टाइम। तो आप लोग उस पे इंसिडेंट आप लोगों ने फौरी तौर पर जो है वो प्रिंसिपल को लिख के देंगे। तो आप लोग क्या लिख के देंगे बच्चों, अगर इफ यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट माई क्लास, ठीक है। If I'm taking at this time, if I'm taking the class face-to-face class, then I give you the assignment। फौरन मैं तो बच्चों को काम देती होती थी कि ये जल्दी से मुझे लिख के दिखाएं भाई, 2 मिनट लगाएं और मुझे सारे लिख के दिखाएं। आपको पता ही आप लोगों ने बिगनिंग की तो क्लासेस ली है ना, ठीक है। तो पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट क्या है, वाई आर वी राइटिंग द रिपोर्ट। अच्छा अब आपके पास क्या आ गया, पर्पस रिपोर्ट आ गई कि आपके पास है क्या, ठीक है। अब वाई आर राइटिंग वी राइटिंग द रिपोर्ट, अब हम लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले तो पर्पस आ गया कि हम लिख रहे हैं, हमारे पास मकसद है कि हम लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग करके इंसिडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट हैपेंड हो गया क्लास में, शॉर्ट सर्किट हो गया है एसी में, तो हम लोगों ने फौरी तौर पर जो है वो मैडम को रिपोर्ट देनी है। हमारे पास एक पर्पस हो गया, ठीक है। हम रिपोर्ट लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। रिसर्च एंड राइटिंग बिकम्स रेलिवेंट टू द टॉपिक। कहते हैं हम जो रिसर्च पे आप लिख रहे हैं या कोई राइटिंग कर रहे हैं वो रेलिवेंट टू द टॉपिक, टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए। स्कोप ऑफ रिपोर्ट क्या है, इसका स्कोप क्या बनेगा, हम लिखने जा रहे हैं तो हम किससे लिखने जा रहे हैं रिपोर्ट, ठीक है। अब लिखने क्यों जा रहे हैं, ताकि प्रिंसिपल को फौरी तौर पर जो है इंसिडेंट जो हैपेंड हुआ है उसका पता चल जाए, फौरी तौर पर पता चल जाए। ये ना हो कि बाद में पता चले आया जी जाके बता दें, या कोई वर्कर वहां से गुजरे, या कोई छोटा बच्चा ही जाके, छोटा बच्चा लाइक आप ही का क्लास फेलो ठीक है, वो जाके प्रिंसिपल को बता दे, मैडम आपको पता है वो पीछे वो फलां बैठी हुई थी ना, लड़कियां लड़की पीछे बैठी हुई थी तो बेचारी पे इल्जाम आ गया उसको ब्लेम कर दे, मैडम वो ऊपर नीचे बार बार कर रही थी उसको, तो उसने भी जी पीछे से वो जो है वो बार बार सुबह का मैं देख रहा था वो कर रही थी, उसने जाके लगा दिया। अब बजाय कि उसने लगा दिया, अब आप जल्दी से इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो बनाना शुरू कर दें, इससे पहले कि कोई और जाके उल्टी सीधी बातें जो है वो उनको कहना शुरू कर दे, ठीक है। तो इंसिडेंट रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन ये फैक्ट बेसिस होती है, ठीक है। तो फिर आप लोग किस तरह से इसको करेंगे, व्हाट नीड टू गो इनटू द रिपोर्ट, ठीक है। कि आप लिखने क्या जाना है, ऑलवेज गेट क्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम द स्टडी गाइड। स्टडी गाइड, अब देखिए मैं आपके आई एम द गाइडर हियर, मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या लिखना है उसमें। एक्सटेंड ऑफ द रिपोर्ट शुड बी क्लियर, और आप जितना भी उसको एक्सटेंड करते हैं शुड बी क्लियर, वो क्लियर ही होनी चाहिए आप लोगों के पास। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, पता चल रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो आप पर्पस ऑफ रिपोर्ट क्या है, आई वॉन्ट टू just I want to inform the principal about the short circuit in the classroom। Research and writing becomes relevant to the topic, relevant के topic ही होना चाहिए। Scope of report क्या है वो भी होना चाहिए। What needs to go into the report, to always get clear guidelines from the study guide, study guide से related भी वो होनी चाहिए, ठीक है। अक्सा नजीर, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा, बाकी सबको भी नहीं आ रही है, बस अक्सा नजीर को ही नहीं आ रही, ठीक है। अब इफ वी आर राइटिंग द इंसिडेंट रिपोर्ट, तो हमें पर्पस पता है, ठीक है। हम यहाँ से इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे कि व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लास ऑफ anatomy on 26 October at 12 a.m. When I was taking class, suddenly there was a short circuit. I heard the huge blast back of my class. Are you getting my point, students? Hello, समझ आ रही है? Getting my point? Dear students, उठ जाएं।
ओके जी मैम, लीजा शौकत कह रही है यस गेटिंग माई पॉइंट, यस गेटिंग योर पॉइंट लिख दें ताकि मुझे समझ आ जाए कि यस जो मैं बोल रही हूँ वो समझ आ रहा है बच्चों को। ये कौन है जी मैम सर? अब पता नहीं जी मैम लिखते जा रहे हैं। तो मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि आप लोग क्लियर आवाज का लिख रहे हैं कि यस मैम क्लियर आवाज का यस मैम लिख रहे हैं, या फिर यू आर गेटिंग माई पॉइंट अबाउट द इंसिडेंट रिपोर्ट। रिपीट कर दें? क्या रिपीट कर दूं रोनिका? रुशना को समझ आ रही है, रोनिका क्या रिपीट करूं बच्चे बताएं मुझे। हम्म। यस डियर। अच्छा जी, ये वाली स्लाइड जो है उसको क्लियर कर दें, चलिए उसको क्लियर कर देते हैं, कोई बात नहीं है, फिर क्या हुआ। अच्छा जी, कहते हैं कि रिपोर्ट, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ इसकी, ठीक है, कि रिपोर्ट जो है उस पर्पस ऑफ रिपोर्ट क्या है कि रिपोर्ट शुड बी क्लियर एंड नोट मोर देन डिटेल्ड, ठीक है, कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पर्पस ऑफ रिपोर्ट है क्या हमारे पास, ठीक है। हिफ्जा हिरा जफर, ठीक है, आवाज भी क्लियर आ रही है और समझ भी आ रही है। एक दफा फिर से मैं बता देती हूँ कि इंसिडेंट जब हैपेंड होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन में वहां पर इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, डिफरेंट रिपोर्ट्स फॉर्म होते हैं जो डिफरेंट फॉर्मेट के होते हैं। अब आप मेरे पास होते तो मैं आपको जरूर क्लास में भी जो है वो लाइव फेस टू फेस जरूर दिखा देती कि किस तरह के होते हैं फॉर्म्स। इंशाल्लाह जब आप लोग वापस आएंगे तो जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, समटाइम्स हमारे पास फॉर्म अवेलेबल नहीं भी होता, वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले या कोई भी रिपोर्ट, अगर उनसे कहें जी रिपोर्ट फॉर्म है तो हमें दे दें, तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास रिपोर्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि ये अब हमारे खिलाफ ही लिखेगा, फजूल सी बात हो गई है, तो मामले को आए गए करने के लिए वो नहीं भी देते, ठीक है। तो आप लोगों को बेटा तरीका आना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग का, ठीक है। If I am talking regarding these slides about the incident report, there are many kinds of report, but I am talking about here about the incident report. Purpose of incident report मैंने आपको बता दिया, there is a short circuit in the back wall of the AC in your classroom when you were talking, when you were taking the lecture of anatomy, ठीक है। Why are we writing report? अब हम लिख क्यों रहे हैं? Want to inform principal about the incident which has happened in the classroom, okay। रिसर्च और राइटिंग बिकम्स रेलिवेंट टू द टॉपिक, ऑफ कोर्स जो लिखेंगे वो रेलिवेंट होना चाहिए टॉपिक से, ठीक है। स्कोप ऑफ रिपोर्ट क्या है कि इसके जो है उसके अगेंस्ट सारी जो है वो एक्शन लिया जाएगा। व्हाट नीड टू गो इनटू द रिपोर्ट टू ऑलवेज गेट क्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम द गाइड, स्टडी गाइड, जाहिर सी बात है स्टडी गाइड जिस तरह आपको स्टडी में गाइड किया गया है कि रिपोर्ट लिखनी है वो सारा कुछ लिखेंगे आप। एक्सटेंड ऑफ रिपोर्ट शुड बी क्लियर, कहते हैं ये जो है रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों का कोई भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पर्पस ऑफ रिपोर्ट है क्या हमारे पास। अब क्या करना है, हमने रिपोर्ट इस तरह से शुरू करनी है। I was taking lecture. I am student of BSN first year at Sharama Nursing College when I was taking lecture of anatomy on 22nd October. On 29 June,
at 11 p.m. when I was taking lecture, there was a huge blast behind of the class where the girls students of my class fellow were sitting there. ठीक है, were sitting there. There was a huge blast when I saw behind the class. Then I saw a short circuit and the fire coming from the AC air condition. और इस तरह से हम लोग उसका बिगनिंग करेंगे. ठीक है, अब देखिए, अब पता चल गया ना what has happened. Just all students got feared and ran here and there out of the class. ये सारा कुछ हम लोग लिख देंगे. हमारी कितनी ज्यादा 8 या 10 लाइनें बन जाएंगी, बहुत ज्यादा भी हुई तो. ठीक है, प्लीज टेक अ सीरियस एक्शन अगेंस्ट दिस happening and इस तरह से लिख देंगे हम लोग. ठीक है, I shall be grateful, I shall be thankful to you and take a strict action against it. We are not the responsible of it. इस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी कह देंगे. क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या और किस तरह से हमने स्टार्ट करनी है. और देखिए, इसमें जो है स्कोप ऑफ द रिपोर्ट भी आ गया. हम लोगों ने जिसको इन्फॉर्म करना है वो भी सारी चीजें आ गई हैं. ठीक है, पर्पस ऑफ रिपोर्ट भी आ गया है. क्लियर टू एवरीवन. ठीक है जी. अच्छा जी, फीचर्स ऑफ वेल रिटन रिपोर्ट, फीचर क्या है इसके, वो क्लियर हो गया बच्चों. ये वाली स्लाइड आप लोगों को तो मुझे बता दें जरा. क्लियर टू एवरीवन. हेलो, टन 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 टन, जाग जाए बच्चों. देयर इज ओनली 25 attendees are here. Where are the other students? ओके, क्लियर. फीचर्स ऑफ अ वेल रिटन रिपोर्ट. अब वेल रिटन रिपोर्ट है एक हमारे पास, कहते हैं उसके फीचर क्या. मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट लिखी है ना. ठीक है, आपको बताया है कि किस तरह से लिखते हैं. ठीक है, तो उसमें अब हम लोग आगे से. थैंक यू अलीजा, शौकत एंड मरियम शजर जी. अ गुड रिपोर्ट हैज अ क्लैरिटी ऑफ थॉट. अब क्लैरिटी ऑफ थॉट भी थी. ठीक है, जो मैंने लिखा, प्रिंसिपल वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक ही दफा में पढ़ा तो उनको पता चल गया कि सारा रिपोर्ट में हुआ क्या था. ठीक है, आ रिपोर्ट इज कंप्लीट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. कहते हैं कि कंप्लीट भी है और एक खुद से जो है वो वजाहत दे रही है हर चीज की, कि जब क्लास हो रही थी, ये टाइम था, ये तारीख थी, इस सब्जेक्ट की क्लास हो रही थी, मैंने एक लाइन में पूरा कर दिया. ठीक है, मैं स्टूडेंट यहाँ का हूँ और बैक बिहाइंड पे जो एसी लगा हुआ है वो भी क्लियर हो गया कि 3 एसी क्लास में लगे हुए हैं 3 मुख्तलिफ दीवानों पे, लेकिन जो बैक एसी लगा हुआ था उसमें जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेशन होगी ना इसमें भी. अ गुड रिपोर्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट भी है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव भी है, जामिया लेकिन मुख्तसर है. अ गुड रिपोर्ट हैज अ प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर. आप प्रॉपर डेट भी बिगनिंग में लिख दिया और सिग्नेचर एट दी एंड. सिग्नेचर करके बच्चों आप ये भी बात याद रखेंगे, जहां कहीं आप अपने सिग्नेचर करें वहां पर आप लोग अपना नाम एक तो सही से लिखिए, सिग्नेचर चले वॉट एवर जिस तरह के भी हैं आपके. ठीक है, अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है तो डेजिग्नेशन भी जरूर लिखें और डेट जरूर मेंशन करें वहां पर. ठीक है, a good report is comprehensive but compact. A good report has a proper date and signature. A good report is presented in a lucid style. lucid style होना चाहिए, मैंने उसी में बताया था. express clearly, easy to understand. ये स्लाइड तो मुझे पकड़ी थी बच्चों, मुझे तो भूल गया कि ये स्लाइड मैंने आपको पढ़ा दी हुई है. ठीक है जी, ल्यूसेट का मैंने उसे मतलब बता दिया था. एक्सप्रेस क्लियरली एंड इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट. कहते हैं फॉर्मेट होता क्या है रिपोर्ट का. इंडक्टिव रिपोर्ट होती है हमारे पास और डिडक्टिव रिपोर्ट होती है. ठीक है, इंडक्टिव रिपोर्ट क्या होती है और डिडक्टिव रिपोर्ट क्या होती है, किसी स्टूडेंट्स को इसका डिफरेंस पता है तो जल्दी से मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टिव रिपोर्ट एंड डिडक्टिव रिपोर्ट. यस. Yes, students, inductive report and deductive report. Hello.
बस रहने देना, बताएं आप मुझे। इंडक्टिव मीन्स होता है करेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ जनरल लॉज। जनरल लॉज के मुताबिक जो हमारे पास लिखी जाती है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिपोर्ट्स। पर्टिकुलर इंटेंस, ठीक है, मतलब पार्टिकुलर वे में, अच्छी वे में जो लिखी जाती है, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मीन्स करेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ जनरल लॉ। जनरल लॉ जो है, रिपोर्ट स्टार्ट विद एविडेंस एंड शाबाश। इंडक्टिव रिपोर्ट एविडेंस से स्टार्ट होती है और कंक्लूजन पर एंड होती है। शाबाश मरियम शजर, ये आप किसने बताया कि इंडक्टिव रिपोर्ट जो है वो एविडेंस से स्टार्ट होती है और कंक्लूजन पे एंड होती है? बताएं जरा मुझे। शाबाश, ठीक बताया आपने। अच्छा जी, इंडक्टिव रिपोर्ट है और डिडक्टिव रिपोर्ट है। डिडक्टिव क्या होता है? अच्छा जी, इंडक्टिव रिपोर्ट में पहले टाइटल पेज आ जाता है, ठीक है। एग्जैक्टिव समरी आ जाती है हमारे पास, ठीक है। समरी लिखी जाती है, टाइटल पेज आ जाता है, समरी आती है, इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। हाँ शाबाश मरियम शजर, आप ठीक बता रही हैं। शाबाश, ठीक है। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव? ठीक है, बिल्कुल सही बता रही हैं। आपके जो डिडक्टिव रिपोर्ट होती है वो जो है टॉपिक से ही स्टार्ट होती है, लेकिन इंडक्टिव रिपोर्ट जो है वो एविडेंस पे स्टार्ट होती है, ठीक है, और कंक्लूजन पे एंड होती है। ठीक हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिपोर्ट जो है टाइटल पेज होता है, एग्जैक्टिव समरी होती है, इसमें इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, डिस्कशन होता है और फिर रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस जो है वो बिब्लियोग्राफी का भी आ सकता है। रेफरेंस जो है आप डिफरेंट बुक का भी दे सकते हैं। अगर रिसर्च रिपोर्ट आप कर रही हैं, रिसर्च रिपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है आपने जहां जहां से जो जो आपके सोर्सेज से सर्च के वो लिखेंगे आप लोग, ठीक है। और डिडक्टिव रिपोर्ट में जो है टाइटल पेज आ जाएगा, समरी आ जाएगी, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, डिस्कशन पहले आ जाएगी, ठीक है। इंट्रो के बाद कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे बल्कि डिस्कशन पहले आ जाएगा, फिर कंक्लूजन आ जाएगा और फिर रेफरेंसेस आ जाएंगे हमारे पास। डिडक्टिव मीन, यस, डिडक्टिव characterized by is by or based on the inference of particular ये क्या हो गया? Deductive means characterized by or ये क्या हो गया? Particular instances, particular instances, particular instances, particular instances स्टार कहाँ है? अच्छा जी, कहते होंगे कहाँ पर चला गया? अच्छा जी, बच्चे क्या कह रहे हैं? डिटेक्टिव रिपोर्ट स्टार्स
with the statement while inductive report starts with observation. ठीक है जी, वेरी गुड। बच्चों को पहले से पता है डिफरेंस इन डिडक्टिव रिपोर्ट वन में मूव फ्रॉम स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन टू जनरल। ठीक है जी, शाबाश, ठीक बता रहे हैं आप लोग। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस है क्या इसके। ठीक है, एडवांटेजेस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं बच्चों। फर्स्ट जो है अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। ये नहीं कि हम अब इंसिडेंट रिपोर्ट की अगर बात ली जाए तो इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो आप लोगों के पास अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसी वक्त होनी चाहिए। 24 आवर्स होते हैं सबमिट करवाने के इंसिडेंट रिपोर्ट। देन द excuse me, then the institute able to take the action. If you submit after 3 or 4 days, then institute is not able to take the action. Okay, फर्स्ट इज अपडेटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड, इंटरनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए उनमें। थर्ड, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग के साथ जो है वो बननी चाहिए। ठीक है। फोर्थ, रिलायबल पर परमानेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डिस्क्लोजेज अननाउन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। सोर्स करंट प्रॉब्लम्स। अब एडवांटेजेस क्या है इसके अगर हम रिपोर्ट राइटिंग के लिए, फर्स्ट हमारे पास आ गया अपडेटेड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए हमारे पास, कोई भी पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर इफ यू आर राइटिंग अबाउट द इंसिडेंट रिपोर्ट एंड इंसिडेंट हैपेंड बिफोर 3 or 4 days, देन यू आर राइटिंग राइट नाउ। अब ये सारा मलबा जो है वो पड़ गया है जी किसी एक स्टूडेंट के ऊपर कि उसने जी जाके शिकायत लगा दिया कि ये सारा कुछ हो रहा था, तो वो जो पीछे वो बैठी हुई थी फलां बच्ची, अब मैं नाम पता नहीं किसका लूं और आगे किस लड़के का नाम लो कि इसने जो है वो उस लड़की पे इल्जाम लगा देगा वो पीछे कभी एसी के स्विच बंद कर रही थी कभी खोल रही थी, तो उसने अब जाके बता दिया उल्टा सीधा नाम लेके। अब वो जी बच्ची उठी है कि मैं क्यों ना इंसिडेंट रिपोर्ट लिखूं ताकि वो जो है मेरे पे भी कोई इल्जाम ना आए और कुछ होना इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या है, अब तो जो होना था वो तो हो गया। जो बात इसलिए कहते हैं कि इंसिडेंट रिपोर्ट जितनी जल्दी आप लोग सबमिट करवा देंगे और बाकी रिपोर्ट्स भी टाइम पे जो है वो सबमिट करवा देनी चाहिए। ठीक है, तो उससे बहुत फायदा हो जाता है, सारी चीजें जो है वो सही सही से सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास। इंटरनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इंटरनल कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि सारे लोगों को वो उस इंसिडेंट का पता होना चाहिए जो जो वहां पर मौजूद थे। ठीक है, तो ये ना हो कि आप कहीं जी बाद में इन्वेस्टिगेशन हो कि कौन कौन मौजूद था, वो सारे कहीं हाँ जी वो जो वो बच्ची ही उठ के रिपोर्ट लिख रही है और वो बच्ची ही जो है वो कभी एसी को ऊपर कर रही थी कभी नीचे कर रही थी कभी बंद कर रही थी कभी चला रही थी। तो ये ना इसलिए इंटरनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि सब लोग जो है वो साथ मिले हों। इफ वी आर राइटिंग अबाउट द रिसर्च रिपोर्ट, तो रिसर्च में भी रिसोर्सेज जो है आप लोगों के आप वही लिख सकते हैं जो कि पर्टिकुलर उससे ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप अपने पास से कुछ भी नहीं लिख सकते उसमें। ठीक है, अब इंटरनल कम्युनिकेशन में ये भी आ जाता है कि जब कोई भी आप चले वो राइट अ रिपोर्ट अबाउट योर विजिट टू द कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी विजिट आप लोगों ने लिखना है तो इंटरनल कम्युनिकेशन उसमें भी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक स्टूडेंट लिख रहा है कि जी हम 2 बजे गए थे घर से 29 जून को 2 बजे जो है वो वापस आ गए थे 8 बजे निकले थे, और अगला स्टूडेंट लिख रहा है जी नहीं जी हम तो 12 बजे वहां से निकले थे और 3 बजे वापस आ गए थे। ठीक है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन इससे रिलेटेड होगी। थर्ड वन है डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। डिसीजन क्या आपने उस वक्त लिया और प्लानिंग क्या की उसके लिए, वो भी सारा आप लोगों ने लिखना है। इफ यू हैव गॉन टू द कम्युनिटी विजिट, तो आप लोगों ने क्या डिसीजन वहां पे मेकिंग की और क्या क्या आप लोगों ने लर्निंग की और क्या वहां पर आप लोगों ने प्लानिंग की, वो सारा कुछ आप लोग लिखेंगे वहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर नहीं लिखते आप लोग तो फिर और डिसीजन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इफ द इंसिडेंट हैपन बिहाइंड ऑफ द क्लास विद द शॉर्ट सर्किट ऑफ एसी और शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर अब डिसीजन मेकिंग आपने उस वक्त क्या डिसीजन लिया फौरी तौर पर भैया आपने क्या एक्शन लिया। ठीक है, वो सारा आप लोग लिखेंगे और फिर फर्दर आपने प्लानिंग क्या की उसके लिए, वो भी सारा कुछ आप लोगों ने रिपोर्ट्स में लिखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अबाउट द इंसिडेंट हैपेंड इन द पीस वार्ड। ठीक है, पीच वार्ड में है, अगर वहां पर हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया एंड शॉर्ट सर्किट एंड many more than 3 pads burn there। ठीक है, burn there with the fire। तो आपने उस वक्त आपने क्या पार्टिसिपेशन की वहां पर, जस्ट लाइक
call as soon as possible to the fire brigade and fire brigade came within the 5 minutes after my call। ये सारा कुछ आप लिखेंगे, ठीक है। और फर्दर प्लानिंग में क्या किया मैंने, फॉर आई जस्ट shifted all the patients from another wards के नाम आपको ज्यादा अच्छे आते होंगे, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोग लिखेंगे उसमें। रिलायबल परमानेंट इंफॉर्मेशन, ये रिलायबल भी है, परमानेंट इंफॉर्मेशन भी है कि आज भी वही है, कल भी वही है, वो किसी और से पूछ लेंगे, इन्वेस्टिगेशन होंगी तो 3 बेड ही जले हुए उनको मिलेंगे, ठीक है। और पेशेंट भी बताएंगे कि हाँ जी हमें फौरी तौर पर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। क्लियर टू एवरीवन। आगे है डिसीजन अननोन इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोज इज अननोन इंफॉर्मेशन। अब डिस्क्लोज किया अननोन इंफॉर्मेशन भी उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है, कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो गया है वार्ड में, ठीक है, फीमेल सर्जिकल वार्ड में, तो आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज क्या की कि आप लोग के वहां पे बेड कितने जले, ठीक है। आपने उसको क्लोज कुछ डिस्क्लोज कर देना है अननोन इंफॉर्मेशन को, जो कि नहीं इंफॉर्मेशन पहले किसी को पता थी, ये नहीं आपने रखना। अब जी टीम लीडर क्या करता है, टीम लीडर तो ही वाज सिटिंग वेरी कंफर्टेबली इन द क्या वो रूम होता है, इन द रेस्ट रूम, नहीं रेस्ट रूम तो वैसे वॉशरूम को बोलते हैं कौन से रूम्स बनी होती है नर्सिंग, इन द नर्सिंग स्टेशन, नर्सिंग स्टेशन में जी वो बड़ी कंफर्टेबल बैठा हुआ था, ठीक है। ही डिडंट टेक एनी एक्शन, एक सीरियस एक्शन और इमीडिएट एक्शन, जस्ट आई टुक द इमीडिएट एक्शन एंड कॉल थ्रू द 112 एंड एम्बुलेंसेज एंड आल्सो फायर ब्रिगेड, ठीक है। ये इसमें क्लोजेज अननोन इंफॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो सोर्स क्रंच प्रॉब्लम, और लिखना चाहिए प्लीज काइंडली टेक अ सीरियस एक्शन against this and electricity, if the wires of the electricity are all the please replace all the wires as soon as possible। ये सारी करंट सिचुएशन जो है आप लोगों के सामने आ गया जी। बेस्ट एडवांटेज, अब आपको बेस्ट रिपोर्ट राइटिंग का पता चल गया है ना, ठीक है। ये सारी चीजें जो है सोल्व करंट प्रॉब्लम्स, ये वो सारा कुछ आप लोगों ने उसमें लिखना है। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? लो भाई ना, आपको क्यों आवाज बेटा कट कट के आ रही है? मैंने तो इतना जो है वो उसको क्लियर वे में किया है। जी लुबाइना, आवाज क्यों कट रही है बेटा? नाउ कैन यू हियर मी? बोल रही हूँ लुबाइना, बताएं मुझे। लुबाइना, यस लुबाइना, आवाज ठीक हुई है अब? लुबाइना अब आवाज आई है आपको? यस लुबाइना, आप बच्चे अपना डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट कर लें, क्योंकि बाकी बच्चों को तो आवाज का इशू नहीं है। हाँ बेटर हुई है, चलें बेटर हुई है तो आप बच्चे डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट कर लेना, क्योंकि बाकी बच्चों को तो नहीं है कोई भी इशू आवाज का, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। बच्चे बेचारे क्लासेस ले रही होती हैं ऑनलाइन, और टीचर्स के लिए भी जो दे रही होती हैं ऑनलाइन क्लास। अब ठीक है, ओके। अब कौन ठीक है? अब लुबाइना ठीक है या मेरी आवाज ठीक है? दोनों ही ठीक है ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्लाइड। जी लुबाइना, इस स्लाइड की समझ आ गई थी? वो हो जाए हो जाती है थोड़ी देर तक, स्लाइड को आगे पीछे ना करो तो। अच्छा जी, अब अगर हम लोग चलते हैं इसकी तरफ, पता चल गया ना आप लोगों को? यही वाली स्लाइड बनती है हमारी। हाँ जी, एडवांटेजेस आ गए हैं। आगे एग्जांपल ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग, कहता है एग्जांपल देनी है हमने रिपोर्ट राइटिंग की। स्टार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम स्कैनर्स अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। दिस रिपोर्ट investigates the current state of scanners technology। ओके। अब रिपोर्ट राइटिंग अगर लिखने जाने तो एक उसकी एग्जांपल है, वी आर राइटिंग ऑन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे हैं, और स्कैनर्स अब्स्ट्रैक्ट पे बात हो रही है, ठीक है। चले, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ इसको पढ़िए, और फिर आपको क्या समझ आती है बताएं मुझे। आपको रिपोर्ट राइटिंग का सारा मैंने बताया है ना, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग।
ठीक है, जिसमें टॉपिक जो है वो फर्स्ट दिया हुआ है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, देखें जरा क्या बताया हुआ क्या नहीं बताया हुआ। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मैं दे रही हूँ, इसको पढ़े और पढ़ के मुझे आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, मैंने एक्सप्लेन नहीं करना। यस डियर। जी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम स्कैनर्स अब्स्ट्रैक्ट में है क्या? दिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट्स द करंट स्टेट ऑफ स्कैनर्स टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट आपके सामने पेश की जा रही है, ये इन्वेस्टिगेट कर रही है करंट स्टेट ऑफ स्कैनर्स टेक्नोलॉजी के, स्कैनर्स की टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, एंड एग्जामिन्स द प्रिडिक्टेड फ्यूचर एडवांसमेंट ऑफ स्कैनर्स के, हमारे पास एडवांस स्कैनर्स जो आ गए हैं उनका फ्यूचर है क्या, ये रिपोर्ट ये पेश करेगी। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन दिया गया ना कि रिपोर्ट पेश क्या करने जा रही है, प्रिडिक्टेड पेश कोई करना, फैक्ट और एस्टिमेटेड
did it or estimated as likely to happen in the future. As likely to happen in the future. Okay. Predicted means stated or established as are likely to happen in the future के future में क्या होने जा रहा है, ठीक है, वो सारा कुछ बताते हैं. Performance of these scanners is examined in relation to four main criteria: resolution, bit depth. अच्छा, this report investigates the current state of scanners technology and examines the predicted future advancement of scanners के future advancement scanners की होगी क्या. This performance of these scanners is examined in relation to four main criteria. Four main criteria इसके सामने आ गया है. Resolution सामने आ गया, bit depth, dynamic range and software. Resolution सामने क्या आ गया है कि इसकी resolution क्या होगी, bit depth में जाएंगे अगर इसकी तो क्या होगी इसमें, ठीक है. डायनामिक सामने आ गया है. डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है characterized by constant change. मैं लिख देती हूँ. भाई आज खत्म करनी है, बस 2 दिन हो गए. डायनामिक क्या खत्म करना है हमने आज, पीपीटी खत्म करनी है इसकी. जस्ट आई वांट टू फिनिश इट टुडे. Characterized by constant change जी. डायनामिक constant change activity और progress हो गया, ठीक. डायनामिक मीन्स characterized by constant change activity और progress. अच्छा, मैं टाइप कर रही होती हूँ, साथ थोड़ा थोड़ा सा बोल भी रही होती हूँ. बहुत से स्टूडेंट होते हैं जब ऐसे पेपर कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा साथ में बोल रहे होते हैं, ठीक है. वो इसलिए बोल रहे होते हैं. अच्छा, हम लोगों का, मैंने आप लोगों को काफी जो है वो बताऊंगी टेक्निक्स भी होती हैं रीडिंग टेक्निक्स में, ठीक है. तो उसमें भी शायद माइक्रोफोन यूज करते हैं कि भाई इर्द गिर्द की हमें आवाजें ना आए तो हम अच्छा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं जब हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बोल के लिख रहे होते हैं, ठीक है. वैसे आप पेपर्स में बोलने तो नहीं देते, क्यों बोल के लिखिए, खामोशी से लिखो दिस एंड दैट, ठीक है. लेकिन उसमें क्या होता है कि आप जो लिख रहे होते हैं ना, आपकी सारी कॉन्सेंट्रेशन उस पर होती है जो आप लिख रहे होते हैं, ठीक है. तो इस वजह से इट्स नॉट अ बैड हैबिट, इट्स अ गुड हैबिट. अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कैनर्स इज एग्जामिन्ड इन रिलेशन टू फोर मेन क्राइटेरिया. रेजोल्यूशन क्या होगी, बी डेप्थ क्या होगी, डायनामिक रेंज क्या होगी और उसका सॉफ्टवेयर क्या होगा. डायनामिक उर्दू में मुतहर्रिक को बोलते हैं, मुतहर्रिक, ठीक है जी. अब इंट्रोडक्शन आ गया. स्कैनर इज अ डिवाइस दैट यूजेस अ लाइट सोर्स टू इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट एन इमेज इनटू बाइनरी डाटा. बाइनरी डाटा कहते हैं न्यूमेरिक सिस्टम को इन्वॉल्विंग टू थिंग्स, के दो चीजों के दरमियान भी जो चीज इन्वॉल्व हो रही होती है उसको भी बोलते हैं. द बाइनरी डाटा कैन देन बी यूज्ड टू स्टोर द स्कैन इमेज ऑन अ कंप्यूटर. के जो भी इमेज स्कैन किया जा रहा होता है वो जो है उसका पूरे का पूरा इमेज जो है वो उसके ऊपर आ जाता है, कंप्यूटर के ऊपर आ जाता है. क्लियर टू एवरीवन. बस ये थी इस पे रिपोर्ट राइटिंग. स्कैनर एक डिवाइस है जो कि सोर्स इलेक्ट्रॉनिकली यूज की जाती है और इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है इमेज को बाइनरी डाटा में, ठीक है. बाइनरी डाटा जो है वो हमारे पास स्कैनर जो है वो उसका इमेज जो है वो कंप्यूटर के ऊपर सारे का सारा जो है वो शो हो जाता है. क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ. नेक्स्ट वन देखते हैं. टाइप्स ऑफ स्कैनर्स क्या है हमारे पास. टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ वेरियस स्कैनर्स कहते हैं. टेक्निकली अगर देखा जाए तो बहुत सारी इसकी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कैनर्स. परफॉर्मेंस चार्ट्स ऑफ वेरियस स्कैनर्स.
वेरियस स्कैनर्स किस तरह से आ जाता है, और कोस्ट वाइज एनालिसिस ऑफ वेरियस स्कैनर। कोस्ट वाइज भी हमारे पास स्कैनर दस्तियाब होते हैं, कोई महंगा होता है कोई सस्ता होता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी एक चार्ट बना होता है स्कैनर्स का। फ्यूचर ऑफ सच स्कैनर्स कहते हैं, फ्यूचर ऑफ सच स्कैनर्स है क्या। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन आ रहे हैं साथ साथ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। क्वेश्चन वन, नंबर आर यूज इन बाइनरी सिस्टम। Number are used in binary system. 0 1 numbers are used in binary system. हाँ, निम्रा ने ठीक लिखा है। जस्ट आई वॉन्ट टू आस्क कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। अब ये देखें बच्चों, हमारे पास क्या है, मेन हमारे पास क्या आ गया है, हम स्कैनर्स के बारे में लिखने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट हम लिख रहे हैं, स्कैनर्स का अब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। याद रखें, अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बच्चों करने के लिए। दीज और ऑल प्रोफेशनल राइटिंग्स। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग हो गई, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग हो गई, सारी मैं बच्चों को सिखाती होती हूँ टर्न वाइज, जैसे जैसे आप लोगों की होती है। ठीक है, अच्छा जी, स्कैनर अब्स्ट्रैक्ट में अगर हम देखें, हमारे पास पहले इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास क्या आ गया चीज, मेन बॉडी आ गई उसकी, कि हमने टाइप्स ऑफ स्कैनर लिख दी, जो पोस्ट वाइज भी परफॉर्मेंस वाइज भी एक चार्ट बना दिया, और बीच में चार्ट भी हम बना के दे सकते हैं उसमें। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास कंक्लूजन आ गया। दिस रिपोर्ट हैज आइडेंटिफाइड 5 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स करंटली अवेलेबल। कहते हैं कि कंक्लूजन में ये आ गया कि हमारे पास 5 टाइप जो है वो स्कैनर की अवेलेबल है। सम आर प्राइमरली यूज फॉर प्रोफेशनल पर्पस। कहते हैं कुछ जो है हमारे पास प्रोफेशनल पर्पस के लिए, अदर आर यूज मोर ब्रॉडली इन द वर्क प्लेस एट होम। और कुछ कहते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो कि वर्क प्लेसेस पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे घर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। स्कैनर्स फॉर स्पेशलाइज्ड पर्पस हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड सच एज स्लाइड एंड हैंड हेल्ड स्कैनर्स। कहते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर्स भी है हमारे पास। स्पेशलाइज्ड स्कैनर्स आर करंटली बीइंग incorporated into other types of technology such as digital cameras, printer and photocopiers. ठीक है जी, क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि 5 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स हैं जो करंटली अवेलेबल है। ठीक है, कुछ जो है वो प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, कुछ जो है वो हम घरों में और कुछ इस्तेमाल करते हैं वर्क प्लेस पर। स्कैनर्स फॉर स्पेशलाइज्ड पर्पस हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड सच एज स्लाइड। कहते हैं कुछ जो होते हैं स्कैनर हम इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास स्लाइड्स के तौर पर आ जाते हैं। कुछ जो है हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं हमारे पास, जो कि जो हम हाथ से करते हैं उसको फौरी तौर पर स्कैन कर देते हैं। कुछ जो होते हैं वो स्लाइड बना देते हैं स्कैन करके चीजों की। स्पेशलाइज्ड स्कैनर्स आर करंटली बीइंग incorporated into other types of technologies। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है शामिल हो जाना, टेक इन, शामिल हो जाना लॉ ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के तहत। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो स्पेशल स्कैनर्स होते हैं वो करंटली बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, वो शामिल हो जाते हैं इनटू अदर टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, दूसरी टेक्नोलॉजीज में, जिसका कि डिजिटल कैमरा हो गया, प्रिंटर हो गई और फोटोकॉपी वगैरह की मशीन हो गई। तो ये सारे स्कैनर जो हैं उसमें भी आ जाते हैं। अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड लिख देती हूँ, taking means ओके, टेक इन लॉ पूरा नहीं लिखा गया, टेक इन लॉ और a company or other organization of a company क्या है भाई, टेक इन law of a company or other organization or other organization। ओके, ठीक हो गया, टेक इन लॉ ऑफ कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड। ओके, इनकॉर्पोरेटेड इसको बोलेंगे। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ, समझ आई है सारे बच्चों को कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या हो रहा है।
ठीक है जी, आगे जी हम लिखेंगे। Any question do you want to ask? Yes, class. Just read it. Anything do you want to ask? So colorful is here. Any question do you want to ask? Any taking okay, and thank you so much for your being with me. मेरे साथ रहने के लिए और ये सारा कुछ पढ़ने के लिए thank you so much for this. Thank you is also very colorful, and any question is also very colorful according to the okay. शुक्र है लुबाइना आपको आवाज आ रही है बच्चे। जी बच्चे, एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क? अच्छा जी, आप लोगों को आपकी डेट शीट का भी पता चल गया है या नहीं पता चला? मुझे ये बता दें आप लोग। पेपर्स का पता चला है? एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे? व्हाट यू अपडेट, व्हाट यू हैव अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन? यस, thank you so much to all of you. Welcome ma'am, Jazakallah to you. जी अभी नहीं पता चले। अब ऐसा है कि अभी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जामिनेशन। मैं भी जरा कंफर्म कर लूँ, ठीक है? तो फिर हम नेक्स्ट में देख के कंफर्म करके कि भाई क्या एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या होगा। ओ एग्जाम्स हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। Abhi, there is no any suggestion or there is no any legal report or there is no any news from being an English teacher मैंने 3-4 words बोल दिए हैं। We have no any update, no any news from the government level, and still government is in so ambiguity that might the college being opened or not, कि कॉलेज खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल को खोल दें, स्कूल्स अभी बंद रखें। दे इज अ वेरी 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 दे आर ऑल्सो वेरी कंफ्यूज। इनफैक्ट our government is confused right now at this time that what will happen. I don't know the further decisions, what the decision will take. अभी हमजा ने एक जो है वो सेंड किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग की और उसकी कोई जरूरत नहीं है। WHO ने जो है वो सारा कुछ बताया है। एनी हाउ हम अभी उस चीज पर नहीं रहते, ठीक है? हमने एग्जाम्स की तो प्रिपरेशन करनी ही है, ठीक है? तो हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हो जी हाँ यहाँ पर आकर दिए जाए बच्चे, प्रिपरेशन तो करनी है ना हम लोगों ने, ठीक है? अभी कुछ नहीं पता ना, और कॉलेज कब से ओपन हो रहे हैं ये भी नहीं पता अभी। यहाँ के आप लोग एग्जाम्स देते हैं ये भी नहीं पता अभी, कहाँ पर क्या करते हैं। हमारा कॉलेज नहीं है बच्चे की, यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है। क्या हो गया आपको? अभी यूनिवर्सिटी में आता है, यूनिवर्सिटी लेवल है ये। पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस यहाँ पर होती हैं, MBBS क्लासेस हो रही हैं। आप लोग भी यूनिवर्सिटी लेवल ही है आप लोगों का, कॉलेज लेवल नहीं होता। कॉलेज तो ग्रेजुएशन तक होता है, तो आपकी ग्रेजुएशन तो नहीं है। मास्टर लेवल जो है वो 4 इयर्स ग्रेजुएशन जो होती है वो यूनिवर्सिटी में ही होती है, ठीक है? तो ये कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी है आपकी। यस, एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क क्लास? नो मैम, हम कुछ नहीं पूछना चाहते, बस आप। आई एम वेटिंग फॉर मैडम रुबीना। ओके स्टूडेंट्स, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी लिख दिया करेंगे दीना, SNC नहीं लिखा करेंगे, कॉलेज ऑफ नर्सिंग नहीं लिखा करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग लिख दिया करेंगे, ठीक हो गया? जी आमिर,